Hello, CA final students of May 24 who have given audit paper. So this is a very, very quick analysis with complete suggested answers, everything when it comes to audit paper. And if your group 2 is pending, then in that case, I will request that you please ignore this particular video. But agar aap anxiety, thoda issues hai and stuff, that is the problem, then in that case, just flush it out of your system and just go through this video, फटाफट देख के फिर then flush it out of your system. Because काफी बच्चों को ऐसा होता है till the point of time they don't see it, then they don't feel like going for the next subject. All right. So, first things first. So there was 3 days leave, all right, and I gave you a complete study plan suggested. I mean, I've unlocked, I had unlocked my fast track lectures and gave you all the revision links and everything. And 85% paper, descriptive paper, was from the revision video that was shared. Yes, and ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बोल रहा हूँ. Minute and video link के साथ I have given the reference. Okay. इट इज जस्ट दैट व्हेन यू लुक एट माय यूट्यूब आपको लगता है यार इसके तो 15-16,000 सब्सक्राइबर्स ही है, किसी और के तो बहुत ज्यादा है. सो व्हाई इज ही कॉलिंग हिमसेल्फ एज एक्सपीरियंस्ड? बिकॉज आई वाज इनटू द फेस टू फेस मार्केट फॉर सो मेनी इयर्स, ऑलराइट, द फेस टू फेस सेक्टर. एंड देन यूट्यूब आई हैव जस्ट स्टार्टेड फ्यू इयर्स बैक बिकॉज मैं टेक्निकली आई एम अ लाइव लेक्चर प्रोफेसर, ऑलराइट. एंड अभी थिएटर में एंट्री, थिएटर वाला बंदा हूँ, ओटीटी पे एंट्री बाद में किया है. ओके. सो I'll just quickly take you through the questions and the answers. So when it comes to MCQ, 30 marks MCQs were asked. वो तो होता ही है. In that, I think students को थोड़ा तकलीफ हुआ. That MCQs, everyone is saying that they went, MCQs were not that easy. So bank audit में there was one case scenario which was a tricky question. Exact details I'm yet to receive for that particular case scenario. Then ESG, SDG, risk-weighted assets for NBFC, CARO 2020. ऑल राइट. देन वन केस सिनेरियो जो मैंने दिए थे उसमें से रिपीट हुआ, वो बेसिकली आईसीआई केस सिनेरियो ही था. एंड देन ऑडिट रिस्क कैलकुलेशन, देन कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर देयर. ऑल राइट. SS 600 एंड स्टफ. इसमें से काफी कुछ these few of these things we know that it will be asked for MCQs, but I think when it comes to MCQ part, students का थोड़ा experience इतना अच्छा नहीं रहा when it comes to audit paper MCQ part. So if you can use the comment section of this particular video, all right, and go for and tell us that exactly क्या क्या MCQs थे, and if you can start a discussion, then it will be great, so that it stays documented, right, कि हाँ भाई ये MCQs थे. Okay. And further attempt के बच्चों को काम आता है. When it comes to your descriptive questions, so I have given a complete synopsis of the question over here. So question number 1A was from client acceptance and continuous procedure, which was from the क्वालिटी कंट्रोल. एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, एंड मैंने रिवीजन लेक्चर में भी बोला था. सी वन, एक बार मैंने रिवीजन लेक्चर का रेफरेंस दे दिया तो ऑब्वियसली रेगुलर कोर्स एंड फास्ट ट्रैक कोर्स में तो था ही. एग्जैक्ट सजेस्टेड आंसर इफ यू वांट यू कैन चेक द 13th मिनट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई हैव गिवन लिटिल बिट ऑफ हिंट ऑफ द आंसर आल्सो ओवर हियर. ऑलराइट. Then 1B was a good question. Okay, 1B अच्छा question था. When it comes to going concern assumption, so you are particular that branch auditor, correct? You are the auditor of the branch. And branch ने accept कर लिया that it is no more a going concern because it is going to close down and sell the business, transfer the business to another entity, which is being created by the company. अब going concern assumption अगर inappropriate है, then management is supposed to prepare balances at NRV receipt basis of accounting, all right, and they are supposed to disclose the facts, and everything has been correctly done by the management, ऐसा ये लोग कह रहे हैं. All right. Then if that is the case, then in that case you can go I mean इसमें material uncertainty related to going concern paragraph नहीं होता, because management has an intention to clearly close the operations of the office, and they are very clear that it is not a going concern. Okay. Then in that case you have to write it in emphasis of matter paragraph. Okay. Material uncertainty related to going concern paragraph is used when there is a material uncertainty. ओके, एंड नॉट व्हेन गोइंग कंसर्न assumption इज ओवर. यहाँ पे तो गोइंग कंसर्न खत्म हो गया है. ओके, एंड मैनेजमेंट ने सारे डिस्क्लोजर्स कर दिए, देन यू कैन राइट इट इन एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ ओवर देयर. ओके. बट आई एम लिटिल वरीड कि इन्होंने ओपिनियन एंड बेसिस फॉर ओपिनियन, आई डोंट नो व्हाई दे हैव आस्क्ड दैट पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज दैट डिस्क्लोजर ऑफ नोट एंड स्टफ कुड हैव बीन गिवन इन एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ. ऐसा होना चाहिए. नाउ व्हेन इट कम्स टू गोइंग कंसर्न, लेट मी टेल यू, आज तक इंस्टीट्यूट ने काफी बार डबल स्टैंडर्ड ट्रिपल स्टैंडर्ड वाले आंसर्स भी दिए हुए हैं. So if you have explained all the possibilities and if your final conclusion was wrong, I mean, is not tallying with what I'm saying, all right, then in that case it is fine, not a problem. तो आप सारी possibilities discuss किए तो they will award you the marks, don't worry about it. Okay. Then अरे बाप रे क्या हो गया. Okay, then next question is about, yeah, SA 810 report on summary financial statements.
So as you can see over here, summary financial statements, and ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था कि 800 सीरीज SRE काफी कुछ पूछा है, एंड थैंक गॉड दैट भगवान ने मुझे ये सुझाया दैट मैं आई शेयर ऑल द रिवीजन वीडियोस विथ यू विद ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड ऑल ऑफ दोस पॉइंट्स have been asked in the exams. So yeah, acceptability of applicable criteria when it comes to preparation of summary FS. Acceptability of the criteria, you have to see whether it is defined by law, what is the nature of the entity, purpose of the financial statements, who are the users, all right, of this summary financial statements. Okay, so that particular point was over here, और ये मैंने revision video में भी बोला हुआ है in this particular video. Okay, question 2A, रिवीजन वीडियो में, आरटीपी वीडियो में, एवरीवेयर आई सेड दिस, ऑलराइट, दैट दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी सेंसिटिव, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है व्हेन इट कम्स टू SF 402, आउटसोर्सिंग वाला पॉइंट था ये, दैट कंपनी हैज आउटसोर्स्ड सम वर्क, ऑलराइट, व्हिच इज बीइंग मैनेज्ड बाय अनदर सीटी कॉन्ट्रैक्टर्स, ओके, एंड यू आर द ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ हैप्पी हॉस्पिटल, ओके, दैट इज द एंटिटी जिसने आउटसोर्स किया है, देन इन दैट केस यू आर द यूजर ऑडिटर, SF 402 का एप्लीकेशन आएगा, एंड यू आर वरीड वेदर कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट, तो उसके लिए सर्विस ऑडिटर से लगेगा अपने को टाइप 2 रिपोर्ट फॉर डिजाइन डिस्क्रिप्शन एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस. दिस कंसेप्ट हैज बीन एक्सप्लेन्ड ओवर हियर. एंड एक और चीज पूछी थी, कैन यू रिलाई अपॉन दैट टाइप 2 रिपोर्ट, ऑलराइट, ये देखो ये मेरी स्टूडेंट है, इसने लिखा भी है टाइप 2, एंड इफ आई वेदर आई कैन रिलाई अपॉन दैट रिपोर्ट और नॉट, उसके लिए आई हैव टू सी कि उसका डेट ऑफ रिपोर्ट क्या था, स्कोप क्या था, व्हाट आर द रिजल्ट्स गिवन बाय देम. सो वेरी गुड. ओके. Then question 2B was professional ethics. Professional ethics was little disappointing. All right. So one thing is very clear that जो लोग कहते हैं खाली professional ethics करते रहते हैं, all right, they need to start giving right guidance to the students that we cannot just stay dependent on professional ethics. So professional ethics भी उन्होंने they have put it in such a situation. यहाँ पे क्वेश्चन 2B कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर है, फिर उसके बाद 2C एक FR का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है. सो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल का एक आंसर जो उन्होंने पूछा था वो मैंने रिवीजन वीडियोस में नहीं था, बट इट वाज देयर इन माय फास्ट ट्रैक एंड रेगुलर कोर्स, एंड आई हैव गिवन द एग्जैक्ट कंटेंट फ्रॉम आवर टेक्स्ट बुक आल्सो दैट दिस इज द पर्टिकुलर आंसर फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल. बट इफ यू हैव जनरली एक्सप्लेन्ड कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल कि क्लाइंट का कंसेंट लगता है, व्हेन देयर इज अ लीगल कंपल्शन, तो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, then in that case don't worry, you should be able to get at least 2 marks over there. All right, 2 marks मिलेगा अगर आपने confidentiality principle को generally disclose किया हुआ है. All right, so not a problem. Okay. Then question 2C. Okay. Yeah, 2C was audit trail, not CFS वाला. CFS वाला की तरह आ रहा है, sorry. So question 2C was from audit trail वाला part. Audit trail is start to end पूरा जो trail होता है, okay, of the documents, and audit trail के ऊपर हमें comment करना होता है. We are supposed to comment whether the company's accounting software is an audit trail feature or not. So it is there in my textbook. It is also there in module, and module में audit trail का meaning बताया हुआ है. But exact internal controls which are required for ऑडिट ट्रेल इज नॉट गिवन ओवर देयर. ऑलराइट, ये थोड़ा आपको सोच के लिखना था कि स्टार्ट टू एंड क्या क्या इंटरनल कंट्रोल्स होने चाहिए. मॉड्यूल हैज गिवन रेफरेंस टू वन पर्टिकुलर नोट ओवर देयर, गाइडेंस नोट एंड स्टफ, बट दैट्स फाइन. मतलब इसमें थोड़ा बच्चों ने आई थिंक अपने हिसाब से लिखा होगा कि वो व्हाट काइंड ऑफ कंट्रोल्स आर रिक्वायर्ड, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस चाहिए, ऑथोरिटी चाहिए. अच्छा, व्हेन इट कम्स टू अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो उसका डेटा मेंटेन होना चाहिए, राइट, सो लॉग फाइल्स होना चाहिए, सो सच काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, segregation of duties and stuff. All right. Now, question number 3A. Question number 3A was a copy paste question of investigation. All right. मेरे पास एक दो डाउट आया, कुछ बच्चों ने इसे agreed upon procedure समझ लिया. No, it is very clear. Subpoint pro CAP to investigate profitability of the business, and this is copy paste module question है कि आप कोई borrower का investigation कर रहे हो and you have been appointed by the bank to do that. Okay. So it is module के test knowledge में देखोगे you will get this particular आंसर. एंड ऑन द डे ऑफ एग्जाम्स पूरी रात बैठ के मैंने सारे मॉड्यूल के टेस्ट और नॉलेज के जितने क्वेश्चन है, टेस्ट और नॉलेज, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग, बट स्टूडेंट सेड दैट वी आर नॉट एबल टू कवर इट, सो आई क्रिएटेड अ समरी पॉकेट नोट्स, एंड आई थिंक इट हैज हेल्प्ड इन एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस ओवर हियर, 3 to 4 क्वेश्चंस मिनिमम. ऑलराइट. देन SF580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में डेट एंड पीरियड को लेकर था. इट इज अगेन मॉड्यूल क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट क्वेश्चन नंबर 3B. 72nd मिनट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो पे भी है, मेरी मॉड्यूल पॉकेट नोट्स पे भी था, एंड यू विल एनीवेज फाइंड इट इन मॉड्यूल टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चन. आप चैप्टर नंबर 6 का टेस्ट और नॉलेज अगर देखोगे देन यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ऑलराइट, अबाउट द डेट ऑफ द पीरियड and also about this particular thing अपना no, even if management has changed, all right, still you will require, अगर मैनेजमेंट बदल भी गया है, अगर मैनेजमेंट और हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वो ईयर का ले रहे हैं जब ये CFO नहीं था, स्टिल दैट CFO हैज टू गिव अस द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन. ऑलराइट, सो दोस पॉइंट्स यू हैव टू कवर ओवर हियर. आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन प्रोफेशनल एथिक्स के बहुत माइन्यूट एरिया से पूछा था, जो इंट्रोडक्टरी एरिया होता है. रेगुलेशन 190A ऑफ CA रेगुलेशंस 1988
ऑलराइट, टू एक्ट एज अ सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग सीए सेक्रेटरी एक्ट कर सकता है इफ द अपॉइंट, आई मीन इन केस ऑफ नो गवर्नमेंट अपॉइंट करता है तो यू कैन एक्ट एज अ सेक्रेटरी, यानी पूरा डॉक्यूमेंट कंप्लायंस एंड एवरीथिंग हैंडल करना। बट इफ इट इज सैलरी वाली थिंग देन तो एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, देन फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड स्टफ you will have to go for permission and stuff। बट ये सैलरी पे नहीं है, यानी कि प्रोफेशनल फीस मिलने वाला है। Okay, then a practicing CA can just take this as a client and you can accept this. This is not a problem. So regulation 190 of CA regulations 1988 है, and I think most of the students would have written correct answer over here. Question number 4A में it is again about quality control। अरे बाप रे, quality control, my God। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटीज होता है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। सो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जब एंगेजमेंट का रिव्यू करता है देन व्हाट आर द एरियाज दैट ही नीड्स टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। एंड अगर एंगेजमेंट पार्टनर एंड एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, देन क्या करना है? इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑब्वियसली फर्म का पॉलिसीज वगैरह फॉलो करना है। एंड बोथ ऑफ थिंग्स वर डिस्कस्ड बाय मी इन द रिवीजन सीरीज, ऑलराइट, एंड आई हैव गिवन द मिनट आल्सो व्हेन इट वाज डिस्कस्ड। क्वेश्चन नंबर 4B इज SRS 4410। ओके, SRS 4410 का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है एंड दिस वाज रियली रियली एक्सपेक्टेड कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। क्या होता है ना, व्हेन देयर इज अ न्यू सिलेबस, सो जो फर्स्ट 2-3 अटेम्प्ट्स होते हैं इन द न्यू सिलेबस, वहां पे ऐसे ही क्लियर एक्सपेक्टेड लाइंस पे देयर आर क्वेश्चंस। ऑलराइट, सो कंपाइलेशन एंगेजमेंट को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज अ कंपाइलेशन एंगेजमेंट? यू कैन चेक 7th मिनट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड कंपाइलेशन एंगेजमेंट, मीनिंग ऑफ दैट एंड वेयर कंपाइलेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड। एंड देन देयर इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ SQC1। SQC1 तो ऐसे SRE ऐसे SQC SRS सब जगह पे अप्लाई होता है। सो इफ दैट यू हैव रिटन देन यू विल गेट 1 मार्क, एंड इफ यू एक्सप्लेन कंपाइलेशन एंगेजमेंट प्रॉपर्ली द अदर मार्क्स आर फॉर दैट। ओके, देन नेक्स्ट वाज फ्रॉम ESD SDG। कुछ बच्चे इस ऑप्शन में छोड़ रहे थे पर दो ही चीज इसमें मेन थी। व्हाट वाज दैट 9 प्रिंसिपल्स ऑफ BRSR एंड जो 6 C's होते हैं ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टेड, दोनों में दोनों क्वेश्चन में आया था। इट वाज सो सिंपल, ऑलराइट, दैट एक आपको MCQ में आया था एंड एक ओवर हियर, ऑलराइट, प्रिंसिपल 1 ऑफ BRSR। सो जस्ट बाय डूइंग लिमिटेड स्टफ यू आर एबल टू स्कोर मार्क्स ओवर देयर। अभी MCQ का 1 मार्क पकड़ लो, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स ओवर हियर, व्हाट इज दैट, 4 मार्क्स ओवर हियर, 5 मार्क्स तो ये आ गया। प्रोफेशनल एथिक्स पूरा 8-9 मार्क्स का है। So, you have to analyze that how much time you're going to give to which areas. All right. So, principle 1 of BRSR is over here. And on the 3 days of exams, I had unlocked my fast track course also if students wanted to see this. Question number 5A, एकदम expected lines पे SRE 2410, all right, जहाँ पे interim financial information का review कर रहा है auditor, all right, and there is a going concern का problem, then in that case कैसे highlight करना है उसे, all right। I hope आपने इसमें material uncertainty और going concern paragraph नहीं लिखा है। Because SRE 2410 does not recognize that concept, and that question was also there in the module question copy paste, and I've discussed this whole adjustment 30th minute of this video। So अगर आपको देखना है तो वो चार्ट देख लो, आपको पता चल जाएगा what should be the suggested answer। Question number 5B, मैंने जब ग्रुप ऑडिट का रिवीजन वीडियो लिया विच वाज ऑफ 25-27 मिनट्स, आई टोल्ड वेरी क्लियरली दैट कुछ कुछ FR के पॉइंट्स दिए मॉड्यूल में विच कैन बी इंपॉर्टेंट, विच आई रिक्वेस्टेड स्टूडेंट्स टू रिवाइज बिकॉज FR में यू ऑलरेडी डू इट एंड द सेम थिंग वाज ओवर हियर। सो आई होप के क्वेश्चन नंबर 5 में यू हैव गॉन करेक्ट। बट अगर आपको एक्जैक्टली समझना है व्हाट वाज दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आई हाइलाइटेड वन पर्टिकुलर लाइन एट 7th मिनट ऑफ दिस वीडियो, एक्जैक्टली अराउंड 7 मिनट 45 सेकंड्स पे आई हाइलाइटेड, आई हैव उसको स्टार मार्क भी किया मैंने दैट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कैन बी आस्क्ड, ऑलराइट, एंड दैट पॉइंट इज देयर इन योर particular question। Then question number 5C again from yeah, इट वॉज, हाँ, नो कलर वाला पॉइंट था। सो आई कैन से दैट प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चन तो थे बट इट वॉज नॉट फ्रॉम द पार्ट्स इन द शेड्यूल्स एंड स्टफ, इतना कुछ नहीं था, और अपार्ट फ्रॉम वन क्वेश्चन। सो डिफरेंस बिटवीन नो कलर एंड ऐसे 250 इट हैज ऑलवेज बीन हॉट फेवरेट। May 23 ऑनवर्ड्स नो कलर कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, एंड इन दैट पर्टिकुलर वीडियो इटसेल्फ आई हैड सेड दैट दिस इज अ हॉट क्वेश्चन, एंड ऑन द 3 days ऑफ एग्जाम लीव भी मैंने शेयर किया था और बोला था ये पर्टिकुलर लिंक नो कलर के लिए आप देख लो, ऑलराइट, व्हिच इज देयर इन माय एग्जाम स्ट्रेटेजी प्लानर। अभी बोल रहा हूं ऐसा नहीं, आप बैक डेटा जाके देख भी सकते हो। ओके, then if you want the answer then it is on this particular video on this particular minute and seconds। Caro 2020, I think अच्छा हुआ that they did not ask a very technical question from Caro, so I really hope that students would have done this particular answer nicely। It was clause 8 of undisclosed income and then clause 18 resignation of auditor and only reporting responsibilities, so nothing about procedures and stuff। So Caro mein they went easy, all right। Then next question number 6B, okay, when it comes to question number 6B, हाँ, ये वाला क्वेश्चन वो डिजिटल ऑडिट का कॉपी पेस्ट था, की एरियाज फॉर अंडरस्टैंडिंग IT एनवायरनमेंट। इसका कोड वर्ड भी दिया था, आई पुट इट इन रिवीजन लेक्चर आल्सो, आई पुट इट इन मॉड्यूल क्वेश्चन नो नोट्स आल्सो।
over there, and you can easily see this particular point. Key areas for understanding है तो expected होता ही. Professional ethics. Again, there is a question of professional ethics. From clause 10, part 1, first schedule. Now, a practicing CA has been given the assignment कि वो income tax का proceedings, TDS refund वगैरह लाना है या कुछ scrutiny वगैरह में है. Then in that case we cannot charge fees which is based upon a percentage of profits या तो contingent upon performance. All right, but कुछ exceptions दिए है clause 10 part 1 for schedule में, regulation 192 of say regulations 1988. I think some students यहाँ पे थोड़ा गलत गए होंगे. The last exception जो है non audit service to non audit client लिख दिया होगा, and frankly speaking non audit service to non audit client का उन्होंने भी कुछ clarification नहीं दिया, so it is possible they may include that part of the answer. But ये वाला question में guilty इसलिए होगा because this specifically has been given as an example in code of ethics that they should not charge it, but they charge it in this manner. All right. Then last was again NBFC audit copy paste question, audit procedures checklist का question था. In my textbook or in my revision video also procedures के अंदर है, module question copy paste है. All right, so I don't think that should be a problem, but I think question 6 ही लोगों ने attempt किया होगा when it comes to because there was an option given over there. Otherwise NBFC audit was also copy paste question. All right. So this is the complete analysis of the answers. If you feel that see they फटाफट बनाया गया video and document है. So if you feel that there are few things which you feel that I have not covered, or video which you feel that और भी ये answer ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है, then use the comment box. We will have an educated discussion. All right, these are professional examinations, एक educated discussion करेंगे. Okay, all the very best, all the very best, all the very best to everyone. Thank you so much.